Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 10 of this playlist Dynamic Programming, we are going to learn coin change problem 2, okay, type 2 problem. So in previous video we have learned coin change problem type 1, in which we have learned like maximum number of ways problem, okay, and in this video we are going to learn minimum number of coins to make a sum, okay. So before starting, I have a very important information for you regarding Newton School. So let's just see that and then we will begin our video. As we all know that Newton School is an e-learning platform, so they have different programs for you like pay after placement, launchpad initiative and master's degree program. But with that they have a grand coding contest scheduled in this month only, okay, like after 4 days to go. So you can just register in this contest. All you have to do is just come to newtonschool.co under grand coding contest, just log in or sign up for free and register for free, okay. So there are cash prizes for you, like there are first prize for 50,000, second prize 25,000 and third prize 15,000, okay. So just register for free and win your cash prizes. There are also Amazon gift vouchers for different top participants from this contest, okay, and there are also some exciting goodies and also job opportunities in different tech lead companies like Zomato, Byju's, Razorpay, okay. So you can just come and check more about grand coding contest, and if you still have any doubt you can just ask me in comment section again. Now at the last, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this channel where we are posting one video every day so that you can complete whichever you are learning right now. Like Java, we have playlists for DSA, we have playlists for programming languages like JavaScript and C++, we have playlists for dynamic programming where I have already discussed around 9 to 10 videos in knapsack programming, okay. So we have seen different variations of knapsack programming, and this video will be almost last video over knapsack variation problems like minimum number of coins. So firstly let's just see what is problem statement for this problem, and after that we will see DP approach, okay. So as this is also a coin change problem variation, okay, coin change problem 2, okay. So now let's just read problem statement, that is given a value v. If we want to make changes for v cents, we have infinite supply of each coins of c, that is c1, c2 up to cm valued coins. What is the minimum number of coins to make the change? Okay, if it is not possible to make the change, print -1. So we have a simple question, like we have v cents of money and we have to make changes for this v cent of money. Like in हिंदी यू कैन से लाइक हमारे पास 20 रुपए हैं, ठीक है, एंड हमें उनको चेंजेस में कन्वर्ट करना है सच दैट मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज हो, ठीक है. तो पिछले वीडियो तक हमने क्या देखा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज ऑफ चेंजिंग वी सेंट्स टू सम चेंज्ड कॉइन्स, ठीक है, उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज. इस वीडियो में हमें कुछ मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जिनका यूज करके हम ये वी सेंट्स बना सकते हैं, ठीक है. तो अगर मैं जनरलाइज करूं उस क्वेश्चन को, सो यू कैन से दैट हमारे पास एक वी वैल्यू है और हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं जिसका यूज करके हम ये वी वैल्यू बना सकते हैं, एंड दिस इज आवर कंप्लीट क्वेश्चन, ओके फाइन. नाउ इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन लाइक ये क्यों अनबाउंडेड नैपसैक है और इसमें क्यों हमें डीपी यूज करनी है और कैसे हम इसका टॉप डाउन अप्रोच कितना वेरिएबल कितना वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन ऑल द प्रीवियस वीडियोस. जस्ट गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, दैट इज कॉइन चेंज प्रॉब्लम 1, ओके, एंड यू विल गेट इट ऑल क्यों हम करते हैं, ठीक है. तो इस वीडियो में हम सीधे क्या करने वाले हैं, जो अपनी टॉप डाउन अप्रोच में हम सीधे इनिशियलाइजेशन देखेंगे, कि क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है. तो पहले हम इनिशियलाइजेशन देखेंगे और सेकंड उसका कैसे वेरिएशन है, पिछले वीडियो से कैसा कोड वेरिएटेड है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ये है कि हमारा अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम का वेरिएशन है, ओके. सो दैट्स वाई हम फिर उसका कोड देखेंगे, ठीक है. तो ओके, तो लेट मी जस्ट क्लियर इट फर्स्ट. तो हमारे पास है क्या, सिंपली
हमारे पास एक v वैल्यू है, ठीक है, और हमारे पास एक कॉइन्स की एरे है। सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक हमारे पास 10 एक सम है जो हमें बनाना है, ठीक है, और एक कॉइन्स की एरे है, सपोज 2 3 5, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस प्रॉब्लम के लिए आंसर देखूं तो मेरा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 5 + 5 = 10 होता है, तो मैं 5 के 2 कॉइन्स यूज करूंगा, तो मेरा आंसर मिनिमम पॉसिबल हो जाएगा 2। ओके फाइन। नाउ अगर तुम लोग सिंपली देखो तो इसमें कुछ केसेस ऐसे भी बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं हम सिंपली। तो डीपी में हम डीपी एरे पहले, सबसे पहले तो हमें वो वाली स्टेट्स चाहिए जो इसमें ड्यूरिंग द प्रॉब्लम चेंज हो रही होंगी। तो हम अनबाउंडेड नैपसैक में जनरली, ठीक है, जनरली हम डीपी ऑफ क्या बनाते थे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज लेट से m है हमारे पास, ठीक है, और m+1 की बना लेते थे ड्यू टू इंडेक्सिंग, और टोटल सम जो हम बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज लेट से v, और यू कैन से n, तो n+1 की बना लेते हैं ड्यू टू इंडेक्सिंग, ठीक है। तो हमने ये डीपी एरे बना ली। अब ऐसी डीपी एरे हम क्यों बना रहे हैं और इसमें हमने ये कैसे पता किया 2D डीपी बनानी है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब मुझे इस डीपी एरे में कुछ इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा पहले, ठीक है, और यहाँ पे डीपी ऑफ ij को मैं डिफाइन कैसे करूँगा, दैट आई हैव यूज्ड i coins, first I coins from the coin array, and what is the minimum answer to make some j, ठीक है। तो ये इस चीज की मिनिमम वैल्यू देगा कि मैंने फर्स्ट i coins यूज किए और मैं j सम बना रहा हूं, और मुझे इस चीज की मिनिमम वैल्यू डीपी ऑफ ij देगा, ठीक है। अभी तक सब क्लियर है, आई होप। अब इसमें क्या होगा, अब इसी की रिस्पेक्ट में मुझे कुछ इनिशियलाइजेशन करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डीपी एरे बना लूं तो इसकी डीपी एरे काइंड ऑफ कैसी बनेगी, मुझे नंबर ऑफ रोज में क्या चाहिए, टोटल एलिमेंट्स +1, तो मैं बोलूंगा 4 रोज, 0 1 2 3, ठीक है। और इसमें मुझे क्या चाहिए 10, ऑलमोस्ट 11 कॉलम्स। तो समवॉट मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ ताकि बहुत बड़ी ना बनानी पड़े। लेट्स जस्ट से 5 और लेट्स जस्ट से 4, ठीक है। तो 4 के लिए अब मुझे 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम करते क्या थे डीपी एरे में, कौन कौन सा इनिशियलाइज करते थे, स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ द इनपुट, उनको हम इनिशियलाइज करते थे, स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट। इनपुट यहाँ पे क्या है, दैट इज m और n यू कैन से, ठीक है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और जो हमारा सम है। तो n यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, n इज सम विच वी आर मेकिंग, ठीक है, फाइन। 0 1 2 3 4, ओके, इतना हमने देख लिया। अब स्मॉलेस्ट वैल्यूज अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ, फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू में बोलता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स m = 0 है मेरा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मेरे पास कॉइन एरे में वो 0 है, दैट इज ये वाली रो, मुझे ये वाली रो इनिशियलाइज करनी है। तो मैं इस रो को इनिशियलाइज अब कैसे करूंगा, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं, ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं, क्या मैं कोई भी सम बना पाऊंगा, जस्ट थिंक ओवर इट। क्या मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे 0 हैं तो मैं कोई भी सम बना पाऊंगा, दैट इज 1 2 3 4। सम 0 तो मैं काइंड ऑफ हाइपोथेटिकली मैं कह सकता हूं कि मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं तो सम 0 मैं बना सकता हूं, ठीक है। और उसका आंसर क्या हो जाएगा 0 कॉइन्स का यूज करके, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं और मेरा सम मैं 0 बना रहा हूं तो मैं 0 कॉइन्स का यूज करके वो सम बना सकता हूं, ठीक है। और इन सब एरेज के लिए भी अगर मैं देखूं कि अगर मेरा टोटल सम जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, सम वी आर मेकिंग, अगर सम मेरा जो मैं बना रहा हूं वही 0 है तो सारे के सारे आंसर ये 0 हो सकते हैं। मैं कितने भी कॉइन्स आई में कितनी भी वैल्यूज ले लूं, बट मुझे एट द एंड कितने कॉइन्स का यूज आएगा,
जीरो सम बनाने के लिए 0 कॉइन्स का। तो आई हैव इनिशियलाइज्ड ऑल दीज वैल्यूज विद 0। ठीक है, फाइन। नाउ अब मुझे खाली इन चीजों के लिए देखना है, इसके लिए कैसे मुझे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 0 हैं और सम 1 सम 2 सम 3 सम 4 ये कैसे बनाना है मुझे। तो काइंड ऑफ कहीं पे ये देखो कि अगर तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज सम तुम 10 बना रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 0। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो वैल्यूज तुम जब ऐसी वैल्यूज इनिशियलाइज करते हो, है ना, तुम जब ऐसी वैल्यूज इनिशियलाइज करते हो तो तुम इसमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढते हो जो तुम्हारे आंसर को अफेक्ट ना करे, एंड विच इज नॉट अ पॉसिबल आंसर एनी हाउ। ठीक है, बट तुम अगर यहाँ पे 0 फिल करोगे, लेट्स जस्ट से कि जैसे हम पिछली प्रॉब्लम्स में 0 फिल कर देते थे, है ना, तो वहां पे तो 0 पॉसिबल आंसर नहीं होता था, बट यहाँ पे 0 इज अ पॉसिबल आंसर। ओके, 0 कैन बी अ पॉसिबल आंसर, लाइक यहाँ पे जैसे कि तुम 0 वैल्यूज का यूज करके सम 0 बना सकते हो। ठीक है, सो 0 कैन बी अ पॉसिबल आंसर, दैट्स व्हाई यू विल गो सम फॉर सम वैल्यू जो तुम्हारा पॉसिबल आंसर नहीं है और जो तुम्हारे फर्दर वैल्यूज को भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर दैट, फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट वी डू इज वी विल टेक इट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो कभी भी अचीवेबल नहीं होगी, और यू कैन से इन्फिनिटी। तो यू विल इनिशियलाइज ऑल दीज वैल्यूज विद इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज कभी भी अचीव हो ही नहीं पाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स लगेंगे तुम्हें 1 2 3 4 बनाने के लिए। ठीक है, फाइन, जब तुम्हारे नंबर ऑफ कॉइन्स 0 है ऑब्वियसली। ठीक है, फाइन, तो ये तुम्हारा क्या है, सम है, मैं और लिख देता हूं, और ये तुम्हारी क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक, फाइन। अब थोड़ा सा इसमें क्या चेंज आता है, ठीक है, मैं और एक चीज बताता हूं इसमें इनिशियलाइजेशन का, और मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन का वो होता है, तो वो क्यों बोला था अब ये देखते हैं। ठीक है, तो मैंने जब मेरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज आई डीपी ऑफ आई जे में जब मेरा आई इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने उस रो के लिए तो पूरा इनिशियलाइजेशन कर दिया, दैट इज पहली वैल्यू 0 बना दी और बाकी सारी वैल्यूज इनफाइनाइट बना दी। इनफाइनाइट को तुम कैसे ले सकते हो C++ में, यू ऑलरेडी नो दैट, इंट ऑफ मैक्स। ठीक है, फाइन, तो इंट ऑफ मैक्स से इनिशियलाइज कर दोगे ना। बाकी अब इस वाले शेल के लिए देखते हैं हम। ठीक है, इस वाले इन शेल्स के लिए, तो जब i की वैल्यू 1 है, जब i की वैल्यू 1 है, इट मींस यू हैव चॉइस ओनली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ कॉइन एरे, दैट इज, अभी मैं अगर एग्जांपल देखूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि मैं 2 का यूज करके पूरा का पूरा सम बनाने वाला हूं। ठीक है, 2 का यूज करके मैं जितने भी सम्स है 1 2 3 4 ये सब बनाने वाला हूं। तो ऑब्वियसली इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 2 का यूज करके, खाली 2 का यूज करके ये सारे सम्स बनाना पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो उन वाले केसेस के लिए हम क्या ऑब्वियसली फिल करते हैं इनिशियलाइजेशन में, इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम वो वाले केसेस में भी इनफाइनाइट फिल कर देंगे जहां पे खाली 2 का यूज करके जे सम बनाना पॉसिबल नहीं है, जे सम बनाना। ठीक है, और उसके आगे तुम बोलोगे कि कई सारे ऐसे केसेस आएंगे, तो वो सारे केसेस अपने मन से फिल होते चले जाएंगे। ठीक है, फाइन। तो राइट नाउ अब मुझे करना क्या है, मुझे ये वाली रो फिल करनी है, इतनी रो। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल सिंपली चेक कि करंट सम, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, करंट सम जो भी मैं बना रहा हूं वो क्या हो जाएगा मेरा जे, डीपी ऑफ आई जे जब मैं फिल करूंगा तो करंट सम जो भी मैं बना रहा हूं दैट विल बी जे सिंपली, और मैं जे को देखो, अगर मैं डीपी ऑफ आई जे इस रो में फिल कर रहा हूं, ठीक है, सपोज इस रो में मैं डीपी ऑफ आई जे फिल कर रहा हूं, तो आई विल सिंपली चेक कि जो जे करंट सम मैं बना रहा हूं, इफ मॉड्यूलो ए ऑफ आई, या फिर यू कैन इजिली राइट इट लाइक ए नॉट, क्योंकि मैं फर्स्ट एलिमेंट यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू 0 है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, मैं ये वाला करंट सम, लाइक अगर जे, लाइक ये वाला केस क्या हो गया, लाइक मुझे सम 8 बनाना है और मेरे पास ए नॉट की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो मैं 2 के 4 कॉइन्स यूज करके 8 बना सकता हूं,
तो आई विल सिंपली मेक dp ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू 4, है ना, और यू कैन से आई विल सिंपली मेक dp ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू j बाय a नॉट, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका सेकेंड केस j मॉडुलो a नॉट नॉट इक्वल्स टू 0, तो आई विल सिंपली मेक इट इन मार्क्स, और यू कैन से इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल होगा ही नहीं कभी, तो उस अनपॉसिबल चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटी, एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने बताया था कि कौन सी वैल्यू यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, नॉट पॉसिबल चीजों के लिए जो कभी अचीवेबल नहीं है, ठीक है, तो दैट इज इन्फिनिटी राइट नाउ, फाइन। अब मेरे पास ये सारी चीजें इनिशियलाइज हो गई, और अगर मैं करंट वैल्यू का इस एग्जांपल के हिसाब से करूं तो इनिशियलाइजेशन कुछ ऐसा होगा, 4 बनाने के लिए फर्स्ट कॉइन का हम 1 बनाने के लिए 2 का यूज हम कर सकते हैं, नहीं, तो इसको इन्फिनिटी बना दो, ठीक है। फिर 2 बनाने के लिए 2 कॉइन का यूज कर सकते हैं, हाँ, खाली 1 कॉइन लगेगा। 3 बनाने के लिए नहीं, इन्फिनिटी। और 4 बनाने के लिए 2 का यूज 2 कॉइन्स लगेंगे, ठीक है। तो इस वे में तुमने ये वाली कॉइन, ये वाली वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ये वाली रो की वैल्यूज, ठीक है। अब आगे से जो भी मेरी वैल्यूज होंगी वो खुद ब खुद इनिशियलाइज हो जाएंगी, और उसके लिए मुझे खाली जो मेरा अनबाउंडेड नैपसैक का इजी कोड रहता था, मुझे खाली वो लिखना है, और वो चीज़ मैं अभी लिख के बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो होता क्या था, आगे से जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस रहेंगी, एंड यू नो दैट ऑलरेडी कि करंट वैल्यू को dp ऑफ आई जे मुझे फिल करना है, ठीक है। तो मेरे पास 2 चॉइसेस रहेंगी कि मैं करंट वैल्यू को, जो भी कॉइन है मेरा, है ना, उसको इंक्लूड करूंगा या नहीं। इंक्लूड करूंगा तो मुझे वो वाला केस लिख देना, और अगर नहीं करूंगा तो वो वाला, ठीक है। जैसे ये है, तो फर्स्ट चेक करेंगे इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। इंक्लूड कर सकते हैं तो उसकी 2 चॉइसेस, दैट इज फर्स्ट यस मैंने इंक्लूड कर लिया, सेकंड नो इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब मुझे इन दोनों चॉइसेस का क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फाइंडिंग dp ऑफ आई जे की मिनिमम वैल्यू, दैट्स वाई मुझे इन दोनों पॉसिबिलिटीज का मिनिमम लेना है, ठीक है। तो इफ आई विल राइट dp ऑफ आई जे, कितना हो जाएगा, मिन ऑफ, सपोज मैं इसके लिए लिख रहा हूं कि मैंने करंट कॉइन को कंसीडर कर लिया है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, dp ऑफ आई जे माइनस मेरी प्रीवियस वैल्यू सम की क्या रही होगी, जे माइनस कॉइन ऑफ आई, ओके। एंड मैंने करंट वैल्यू को कंसीडर किया, करंट कॉइन को कंसीडर करने के बाद मेरी ये वैल्यू किससे इंक्रीज हो गई होगी, +1 से। ऑब्वियस सी चीज है ना, क्योंकि मैंने करंट कॉइन को कंसीडर किया तो मेरी dp ऑफ आई जे की वैल्यू किससे ऐड हो गई होगी, +1 हो गया होगा सिंपली, ठीक है। और अगर मैंने करंट वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, नो वाले केस में मेरी सिंपली dp ऑफ आई -1, और सम मेरा सेम रहेगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज, dp ऑफ आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, मैं ये नो वाला केस लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जब मैं i-1 एलिमेंट्स यूज कर रहा था और मेरा सम ऑलरेडी j बन चुका था, ठीक है। तो या तो मेरा आंसर उसके इक्वल हो जाएगा, और या तो मेरा आंसर इसके इक्वल हो जाएगा कि मैंने जब मेरा सम जो था वो कितना था, j माइनस सी ऑफ आई, ठीक है, और एलिमेंट्स में कितने यूज कर रहा था, इतने, और उसमें +1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। सो ये मेरा dp ऑफ आई जे को मुझे कैसे फिल करना है, ये हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और बाकी सब चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, फाइन। तो अगर इसका कोड लिखना है तो आई एम नॉट राइटिंग कोड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हें अगर कोड लिखना है तो तुम्हारे सिंपली 3 लाइंस का कोड है। फर्स्ट लाइन तुम्हें सिंपली क्या लिखनी है, इनिशियलाइजेशन वाली, कि कैसे तुमने इस dp एरे में ये वाली रो को इनफाइनाइट किया फ्रॉम 1 टू टोटल सम, ठीक है। और dp ऑफ नॉट को तुमने 0 बनाया, और ये पूरी कॉलम को 0 बनाया तुमने, ठीक है, इसको इनफाइनाइट किया। फिर जो इसकी फर्स्ट रो थी, मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिख दूं तो फॉर लूप लगाना 1 टू तुम्हारा जो सम है दैट इज v, ठीक है, v सेंट्स यहां तक लगाना, और dp ऑफ 0 i को तुम्हें इनफाइनाइट दैट इज इंट मैक्स बनाना है, ठीक है।
फिर तुम्हें इसके लिए इनिशियलाइजेशन करना है तो तुम्हें अब फॉर लूप लगाना है फ्रॉम 0 to m+1 dp ऑफ i 0 को तुम्हें कितना बनाना है 0, ये वाला इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर तुम्हें ये वाली चीज फिल करनी है ना। तो तुम अब लूप लगाओगे फॉर 1 to v, ठीक है। और तुम सिंपली कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट लिख दो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा i, एंड यू विल सिंपली चेक कि इफ i मॉडलो a नॉट जो है तुम्हारा वो इक्वल्स टू 0 है तो तुम इसको किसके इक्वल बना दोगे, dp ऑफ ij को सिंपली इक्वल्स टू i बाय a नॉट, और अदरवाइज एल्स में इट विल सिंपली इक्वल्स टू इनफाइनाइट और इंट मैक्स, ठीक है। और बाकी dp ऑफ ij के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है, min ऑफ dp ऑफ i j माइनस करंट वैल्यू जो तुम्हारे कॉइन की थी, ठीक है, जो मतलब तुम्हारा प्रीवियस सम ऑलरेडी रहा होगा वो कितना रहा होगा, j माइनस करंट वैल्यू ऑफ योर कॉइन दैट इज c ऑफ i, ठीक है। इसका +1 फॉर करंट कॉइन जो तुमने अभी अभी ऐड किया है ना, फाइन। और या फिर dp ऑफ i-1 और j कि तुमने फर्स्ट i-1 एलिमेंट से यूज किए, तुम करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हो और तुम्हारा सम ऑलरेडी j रहा हो, इन दोनों का मिनिमम, ठीक है। तो दिस इज द कोड फॉर दिस कॉइन चेंज प्रॉब्लम 2, okay, not 1, 2. And if you still have any doubt, you can just ask me in comment section. Just go and take this as your assignment. जाओ और इसका कोड लिखो, और कोई भी डाउट है तो you can ask me in comment section. Again, if you haven't checked this grand coding contest of Newton School, just go and check and register yourself for free. Just sign up or log in for free and register yourself and win exciting prizes and job opportunities via Newton School. And subscribe this YouTube channel that is Code Kitchen Newton School and get the most out of it for free. Thank you guys for watching.